یہاں تک کہ ان کی تہائی حصہ تاریک ہو گیا اور تہائی دن بھی روشنی نہ رہی اور اسی طرح تہائی رات بھی۔ اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کے اڑتے ہوئے بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان تین فرشتوں کا نسنگوں کا آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس افسوس افسوس۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام سے انہیں خدا کا وہ روح ملے آمین جس سے اس نے کلام کیا ہے، آمین آمین۔ اور یہ اینڈ ٹائم کا جو کلام یہاں لکھا ہوا ہے، اس کی حکمت، اس کی دنائی اور اس کے خوف کے سبب سے آپ کو فضل خدا بخشے کہ آپ اس کی بادشاہ میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں برکت میرے ساتھ جائے؟ ہاللویا آئیے بلند نعرے کے ساتھ خدا کے کلام کی تعظیم کریں گے۔ ہاللویا! ہاللویا۔ یسوع کے خون میں، فتح ہے، یسوع نام میں، فتح ہے۔ ایک مقدس ایک تعظیم آپ کے بیٹھنے۔ دنیا میں کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو آپ کو آخرت کے بارے میں بالکل واضح بتائے۔ یہاں وہ کلام ہے جو شروع سے لے کے ابتدا تک ایک ایک چیزوں کو، مختلف زمانوں میں نبی آئے، انبیاء آئے اور انہوں نے اس کلام کو لکھا، اور آخر میں رسولوں نے ان کو لکھا۔ اگر ان سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک ہی بات پر متفق ہیں، اور سب سے بڑھ کر اینڈ ٹائم کے بارے میں یسوع نے جب اپنے شاگردوں کو بتایا تو اس بات کو بتاتے ہوئے بھی 2000 سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جانتے ہیں یسوع نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ وہ سب جانتے تھے۔ متی کی انجیل اگر آپ اس کا 24واں باب اس کی 29 اور 30ویں 31ویں آیت دیکھیں، اس میں لکھا ہے، اور فوراً ان دنوں کے مصیبتوں کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ اس وقت زمین کے سب قبیلے، سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے، اور وہ نسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کرے گی۔ یہ یسوع نے کہا۔ کیا کہا؟ اور فوراً ان دنوں کی مصیبتوں کے بعد سورج اور تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمان سے کیا کریں گے؟ گریں گے، آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 2000 سال کے بعد بھی جب یوحنا نے اسے اینڈ ٹائم پہ لکھا، جو کہ یسوع کے کافی عرصے کے بعد اس کتاب کو لکھا گیا، تو اس نے بھی انہی باتوں کو، جسے یسایہ نبی کہتا ہے، حزقیہ نبی کہتا ہے، دانیل نبی جس کے بارے میں کہتا ہے، یوئیل نبی جو کہتا ہے، یہ سب ایک ہی بات کو اسی طرح لکھتے ہیں جیسے آج ہم نے پڑھا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، اور جب چوتھے فرشتے نے نسنگا پھونکا تو تہائی سورج اور تہائی چاند اور تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا تہائی حصہ تاریک ہو گیا، اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی، اسے تہائی رات میں بھی روشنی نہ رہی۔ پچھلے ہم نے جمعے کو دیکھا تھا کہ ایک ناکدونا ستارہ آسمان سے گرا اور پانی پر گر پڑا، یعنی کہ ندی نالوں پر، چشموں پر، دریاؤں پر وہ گر پڑا، اور پینے کا پانی کڑوا ہو گیا، ناکدونے جیسا ہو گیا، یعنی کہ کڑواہٹ سے بھر گیا، اور کڑوا اور پانی خراب ہونے کے وسیلہ سے لوگ پانی کو نہ پی سکے، اور جنہوں نے پیا وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ سو پانی برباد ہو گیا۔ اب چاند، سورج، ستاروں کو زر پہنچی ہے، اور دنیا میں 4 گھنٹے دن کے کم ہو گئے اور 4 گھنٹے
रात के कम हो गए। क्या ऐसे हालात में कोई खुदा का शुक्र अदा करेगा? करेगा कोई शुक्र अदा? नहीं, क्योंकि हमें आदत नहीं है। लोग डर के मारे, खौफ के मारे अपनी जानों को बचाने के लिए हर एक चीज के ताबे होंगे सिवाय खुदा के, क्योंकि ये आफतें इलाही हैं। ये किसी जंगों से चांद सितारे नहीं गिरेंगे, ये खुदा के कवानीन से गिरेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक। और ना ही आज तक कोई हुकूमत कोई अपनी ताकत से इनको गिरा सकती है, क्योंकि ये ऐसा सर्कल है खुदा का। सितारे अपने महवर में घूमते हैं, कहकशां अपने महवर में घूमती हैं। पूरी गैलेक्सी जो है खुदा के रूह के ताबे रहती है। उनमें से कोई भी झुरमुट में कोई सितारा, कोई सियारा जमीन पर नहीं आता है। पर यहाँ जब खुदा ही उनको हुक्म दे देगा तो सब कुछ क्या होगा? तब्दील हो जाएगा। 1/3 यानी कि 33% तबाही सितारे चांद पर, सूरज पर और दिन की रोशनी और रात की रोशनी में आ जाएगी। हालांकि इस हालात में लोगों को आसमान के खुदा को तरफ पुकारना चाहिए, ललकारना चाहिए कि हमें बचा। पर ऐसा इसलिए नहीं होगा। खुदा 120 साल नूह के दौर में मनादी करता रहा कि तूफान आने वाला है। क्या लोगों ने अपनी रवश बदली? नहीं। इसलिए आप पर पहले मोहर की गई है ताकि आप इस हालात से निकल आए। इसी बात का जश्न मनाने के लिए हम जमा होते हैं। इसी बात की इबादत तो प्रस्तश है। इसी बात का मौका आपको दिया जाता है, जो मौका प्रस्तश का है, कलाम का, उसे जाया ना करें, क्योंकि वो आपके लिए आपके अंदर लिबास बुनता है। खुदा क्या है? खुदा क्या है? रूह है। और उसका कलाम भी क्या है? रूह है। ये आपके अंदर घुस जाता है, आपके दिमाग को बदलता, आपकी सोच को बदलता है, आपके बदन की बीमारियों को भगा देता है, आपके दुश्मन को, असर को, तासीरों को, बदरूहों को भगा देता है। जब आप रूह से इसे कबूल करेंगे तो ये रूहानी शिफा आपको बख्शेगा और आपके जिस्म और जान को एक बड़ी बादशाही के लिए तैयार करेगा। खुदा के कलाम लिखे हम सब क्या होंगे? तब्दील हो जाएंगे, रूह में आ जाएंगे। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, खुदा की प्रस्तुश होगी, खुदा का रूह होगा, तब ये होगा। ये ऐसे नहीं हो जाएगा। शायद हम बहुत सी चीजों को देखने के बाद इन बातों को यकीन करेंगे, लेकिन खुदा का कलाम बिफोर टाइम हमें आगाह करता है। इससे पहले कि घड़ी आ पहुंचे, वो आपको सब कुछ बताना चाहता है ताकि आप इस घड़ी को ना देख सकें। ये हमें तैयारी का मौका देता है। दुनिया के सब सहीफे इंसान को रास्तबाजी सिखाते हैं, तो भी वो क्या करता है? क्या करता है इंसान? गुनाह करता है, कमजोरियों से भरा हुआ है। इसलिए उसने आपका इलाही फिदिया दिया है ताकि आप अपनी रास्तबाजी से नहीं बल्कि मसीह की रास्तबाजी के सबब से क्या हो जाए? बचा लिए जाए। देखा जाए तो हमारी हर इबादत एक जश्न है, लेकिन हम इस तरह इसको नहीं मनाते। हम उन्हीं तरह, क्योंकि हमारे जात में गुनाह होता है, हमारी जात में कमजोरी होती है, हम उसी के गिर्द घूमते रहते हैं। हम खुदा के कलाम के गिर्द नहीं घूमते हैं। खुदा ये जंग जीत चुका हुआ है और जीती जंग उसने आपको दी है। बस आपने उसे कबूल करना है कि मैं मसीह में क्या हूं? फातेह हूं। मसीह में क्या हूं? मसीह में क्या हूं? फातेह हूं। ये जो मायूसी आपके अंदर है, खौफ और उदासी रहती है आपके अंदर, आप अपने अंदर मिटते रहते हैं, ये खत्म हो जाएगा। ये खुशी और शादमानी आपकी जिंदगी में आ जाएगी, क्योंकि खुदा के सब वादे क्या हैं? हाँ में हैं।
उसके नाम में नहीं है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को बताया ये सब कुछ होगा, तो जब यूहन्ना ने इससे लिखा तो उसे यीशु की बात याद आई कि मेरे खुदावन ने मुझे बता दिया था कि क्या कुछ होगा। ये तबाहियां, ये बर्बादियां आपके लिए नहीं है, बल्कि अब इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आप इस वक्त की कदर करें जो घड़ी खुदा ने आपको बख्शी है। ये कौमों और उम्मतों की सजा है कि उन्होंने मसीहा को कबूल ना किया। यहां साफ लिखा है हर कौम, हर कबीला क्या करेगी? छाती पीटेगी। खुदा के कलाम में यीशु जी ने क्या कहा मत्ती की इंजील में ही, और फौरन इन दिनों की मुसीबतों के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर क्या होगा? दिखाई देगा। उस वक्त जमीन के सब कौमें क्या करेंगी? छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जान उसका इकरार करेगी। जिन्होंने उसको छीता है वो भी उसको देखेंगे। तो ये सब कुछ जब होगा तो फिर मसीहा की आमद भी होगी। लेकिन यहां इन मुसीबतों में कलीसिया नहीं है, क्योंकि यीशु की ज़ाहरी आमद-ए-सानी है, और ज़ाहर आमद-ए-सानी में यीशु कलीसिया के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। वो हमें साथ लेके आएंगे। देखो जो कुछ मैंने कहा था वो आज क्या हुआ है? पूरा हुआ है। सो मसीहों की हर इबादत एक जश्न है, पर हम बड़े मातम से इसको मनाते हैं। न प्रस्तश में खुदा को शादमानी से प्रस्तश करते हैं, न खुशी से शादमानी से गवाही देते हैं, न उसके कलाम को सुन के नारे मारते हैं, क्योंकि हम उन हालात को देखते हैं जो हमारे गिर्द घूमते हैं। लेकिन जब आप खुदा के हालात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे तो आपके सारे माली परेशानियां, बीमारियां, तासीरें जो आपको उदास रखती हैं, आपकी जिंदगी से, आपके घराने से क्या होंगी? भाग जाएंगी। यही अंजील का मतलब ही खुशखबरी है, और वो ऐसी खुशखबरी देते हैं ताकि हर बशर क्या हो जाए? खुश रहे। पौलुस रसूल कहता है मैं तुम्हें कहता हूं खुश रहो। मैं फिर कहता हूं क्या रहो? खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी निजात नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। लोग फिक्र करेंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, कहां जाएंगे, ये फैसला आपका हो चुका है। और जो फैसला यीशु ने आपके लिए किया है वो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ, बल्कि आपके लिए यरूशलेम को सजाया जाएगा दुल्हन की तरह, ताकि दुल्हन को वहां रखा जाए। काश हम बड़े जश्न के साथ, जैसे लोग शादी पे जाते हैं, इस तरह तैयार होके जाएं इबादत में और खुदा की इबादत प्रस्तश करें। खूब खुदावन की ललकार का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये ऐसी ही प्रस्तश है। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है। आज कौमें लड़ रही हैं जगह मकाम से, पर उसने कहा यू आर द टेम्पल ऑफ द गॉड, तुम खुदा का क्या हो? मक़दस हो। तुम खुदा का मक़दस हो, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। और जब वो हमारे अंदर रहता है
तो फिर जो हमारे अंदर रखा हुआ उसको बाहर जाना चाहिए ना। कितने लोग चाहते हैं चले जाए? आइए अपने कदमों पे खड़े हो। एक खुशी, एक शादमानी, इन कलामों को सुनाने का मकसद आपको खौफ और दहशत में लाना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से वाकिफ करना है, ताकि सच्चाई आपको क्या करे? आजाद करे, ताकि आप अपनी खुशी को पहचानें। अगर आपको अपने गुनाहों का खुद कफारा देना पड़ता तो क्या बनता? जैसे कौमें सोचती हैं, मेरे अमाल अच्छे होंगे तब मेरा हिसाब होगा। क्या कोई शख्स खुदा से हिसाब किताब कर सकता है? इसलिए उसने आप पर क्या किया है? हालेलुया, उसने आप पर क्या किया है? फजल किया है, आपकी खताओं को खातर में नहीं लेता है। दाऊद क्या कहता है? मुबारक है वो शख्स जिसकी खताओं को खुदा खातर में नहीं लाता है। तो फिर कैसी इबादत होनी चाहिए हमारी? कैसा जश्न होना चाहिए हमारे अंदर? कैसी शादमानी होनी चाहिए? आसमान के सितारे गिरते हों, सूरज तारीक हो जाए, चांद अपनी रोशनी ना दे, आसमान की कुव्वतें हिल जाए, जमीन हिल जाए, और मसीही क्या करते हो? वो आसमान की तरफ देखते हो, जल्दा। हालेलुया, क्योंकि ये निशानियां हैं तेरे जिंदा यीशु के आने की। सो हमारी खुशी और शादमानी और हमारी इबादत दुनिया से अलग होनी चाहिए। आप जब यहां आते हैं, एक ईमान की रूह से आए कि आज मुझे अपनी शिफा को, अपने हालात को, अपनी मुसीबतों को छोड़ के जाना है, और जो खुदा के घर की खुशी है वो हम अपने साथ लेके जाना है। सो ये चांद, सूरज, सितारे जब तारीक होंगे, दुनिया चीख रही होगी।